Students, from today I am going to start this area related to the circle. So this will be the revised portion, in which in the first some parts I will tell you the short answer type questions, then I will tell you the long answer type questions of this complete chapter, which will be beneficial for your board examinations. So just go through these questions. So let's start without getting late. This is your first question. Question is, if the radius of a circle is 4.2 centimeter, compute its area and circumference. Now look here, you have been given the radius of the circle, that is 4.2. So this is radius. Radius means r. R has been given here 4.2 centimeter. 4.2 centimeter. Compute its area and circumference. Now first we have to find out the area of the circle. Now you are knowing area of the circle formula. Formula for area of circle is pi r square, and in place of pi you have to put the value there 22/7, and r value has been given here 4.2. So it is the 4 square of 4.2. So I can write it like this: 22/7 multiply 4.2 has been into, so 4.2 you can write it 2 times. 4.2 multiply 4.2. Okay, now you can solve this. Upside you have to multiply and then divide by 7 downside, so you will get your required answer, which will be the area of the circle, which will be in centimeter square. Getting na? Okay, so this was your the first part of the question, in which we have found the area of the circle. Okay, clear na? Very good. Now in the next part of the circle, next part of the question is, here you have to find out the circumference of the circle. How will you find the circumference of the circle? Let's see. Circumference of the circle. So circumference of the circle you are knowing. Circumference of the circle formula is what? Just tell me. Yes, circumference of the circle formula is 2 pi r. This is 2. Okay, let me write it correctly. 2 pi r. Again you have to put the value there. 2 multiply, value of pi is 22/7, and value of r is how much? Has been given here 4.2. So write it 4.2 here. Okay dear. Now you upside multiply, then divide by downside. 2 multiply 22 multiply 4.2, how much coming? Write it here. Then downside by 7. Whatever the answer you will get, that will be in centimeter. Okay, so this will be the circumference of the circle. Clear dear? Very good. So this is how we will do this first question. Now let's do the question number next. What is the area of a circle whose circumference is 44 centimeter? Now let's see what we have to find it. Area of the circle we have to find out. Now you tell me the formula for area of the circle. Just what is the formula for area of circle? Formula is pi r square. Okay, now you are not having r. Radius has not been given here. So first we will find out the radius. Okay, how will you find out? Once again read the question. What is the area of a circle whose circumference is 44 centimeter? Circumference has been given here. So this is the hint for us. Circumference has been given here. Circumference of the circle is 2 pi r. So value of 2 pi r has been given here 44. Okay, so here from here we will find out the value of r here. Okay, just write it. 2 multiply value of pi is 22/7 multiply r is equals to 44. Clear here? Now we can do one thing, we can cut it. Okay, this 22 will cut this 44 2 times, and this 2 will cut this 2. Okay, so what is left here? Here only left r, and this 7 will go there, and nothing is there, so it will be only 7. So radius will be 7 centimeter. Now we have found the radius. Now this value of this r you have to put here to find out the area of circle. Clear? Very good. Now we will find out the area of circle. Radius is r is 7 now. Okay, yes, just note it down. Now we will find out area of circle. Okay, let's see how to find out area of circle now. Let me erase this complete. Area of circle. Area of circle. Now I am writing here area of circle. Formula is pi r square. Okay, value of pi is 22/7, and value of r just we have found what, how much was that? 7. So I will write it square of 7. So I can write it 22/7 multiply 7 multiply 7 2 times. This 7 will cut each other, and this 7 multiply 22 will come 154. This will be your answer.
Clear here? So this is how we will find out the area of circle. Okay. Now let's do the next question. Next question is, calculate the area of a sector of angle 60 degree given the circle is having a radius of 6 centimeter. Now radius has been given here, that is r. R has been given here how much? 6 centimeter, and angle means theta also has been given here 60 degree. What you have to find out? Area of the sector. You should know the formula. Just tell me what is the formula for area of sector of a circle. Just tell me fast. Tell me fast. Yes, I think you are not writing this formula. Right, keep writing this new formula. Okay, area of sector of a circle. Formula is theta upon 360 multiply pi r square. Nothing you have to do. You have to put the values here now. Okay, in place of theta I will put here 60. Okay, just write here. So I can write it 60 by 360 multiply how much? Pi r square. So value of pi is how much here? 22 by 7. I will write here 22 by 7 multiply r square. R is how much? R has been given here 6. So I will write here square of 6. Square of 6 means 2 times I will write 6. Okay dear? Okay. Now we can cut it also. This 60 will cut this 366 times, and this 6 and this 6 will cut each other. So how much is left there? Only 22 multiply 6. How much it is? How much it will come? I think 132 divided by 7. So this will be your area of sector, which will be in centimeter square. Clear here? Okay. Now let's do the next question. Next question is, a chord subtends an angle of 90 degree at the center of a circle whose radius is 20 centimeter. Compute the area of the corresponding major segment of the circle. Now what you have been given here? First you have been given the angle here. Angle is theta. Theta has been given here 90 degree. Clear? Okay. This theta has been given here. Okay. Now radius also has been given here. R also has been given here 20. Yes. Compute the area of the corresponding major segment. You have to find out the area of the major segment. Now first we will make its figure. This is the circle. A chord subtend an angle of 90 degree at the center. Chord, how we will draw the chord? Just tell me. Chord is this, like this. This is known as the chord. Okay. This chord is making 90 degree angle. 90 degree angle at the center. Let's say this is the center of the circle. So this angle means this angle is 90 degree angle. Clear na? Yes. The chord is making 90 degree at the center of a circle whose radius is 20 centimeter. So 20 centimeter means this distance is 20 centimeter, and this distance is also 20 centimeter has been given here. Now we have to compute the area of the corresponding major segment. Now you can see here there are two segments. What? This is known as the minor segment. This is known as minor segment. And major segment किसको कहेंगे? Major segment जो ऊपर का पार्ट बच जाएगा. जैसे आपने ना नीचे का पार्ट आपने इतना क्लोज कर लिया, इस पार्ट को आप सपोज इतना आप इस पार्ट को आप क्लोज कर लो, ठीक है. तो जो पार्ट ऊपर का आपका बच जाएगा, ऊपर का पार्ट कौन सा बचेगा आपका, जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूँ, देखो ये पूरा, इसको कहेंगे हम मेजर सेगमेंट. ठीक है. तो आपको मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे मेजर सेगमेंट की एरिया? जस्ट टेल मी. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? जस्ट टेल मी. हाउ विल यू फाइंड आउट? देखो पूरे सर्किल में से अगर मैं माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूँ तो मुझे मेजर सेगमेंट की एरिया निकल जाएगी, जो येलो वाला पोर्शन है. क्लियर है ना? हाँ. तो पूरे सर्किल में से पूरा सर्किल की एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ये माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे. ठीक है ना? सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपकी हो जाएगी एरिया ऑफ, क्या हो जाएगी बताओ? टेल मी. एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. क्लियर है ना? तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप माइनस कर देंगे.
ठीक है ना। अब आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले निकालनी है। एरिया ऑफ सर्कल तो आप निकाल सकते हैं पाई आर, एक एक करके इन दोनों को निकालते हैं हम। पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, फिर उसके बाद निकालेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, अगले पेज में निकाल लेंगे इसको। एरिया ऑफ सर्कल मैं इस पेज में निकाल लूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ पाई आपको पता है 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर आपको कितना दिया था क्वेश्चन में? जस्ट टेल मी हाउ मच इट हैज़ बीन गिवन हियर। आर की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया है ना। सो आर इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 का आप स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है डियर? बस आप अपसाइड मल्टीप्लाई कर दो सारे, यू विल गेट योर आंसर। 20 जा 400 एंड 400 मल्टीप्लाई 22, हाउ मच इट विल कम? जस्ट टेल मी 400 मल्टीप्लाई 22, 22 0, 22 0, 22 4 जा 88, दिस मच विल कम डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है? सो 8800 डिवाइडेड बाय 7, ये आपकी सर्कल की एरिया आ जाएगी 8800। क्लियर है? सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। और फिर चलो एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा पहला पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। अब माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम? आपको फॉर्मूला पता है ना, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जस्ट लेट मी टेल यू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जस्ट टेल मी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका होता है, कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया पहले। इसके लिए पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं, फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप माइनस कर, देख लो एक बार यहाँ पर शो भी कर लेता हूँ मैं आपको। जैसे ब्लैक वाला पोर्शन आपका नीचे वाला, ये जो वाला है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ अभी, ये आपका माइनर सेगमेंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप पूरा एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, इसको पूरा सेक्टर बोलते हैं बड़ा वाला है, ठीक है। इसमें आप ये ऊपर वाला ट्रायंगल को माइनस कर लेंगे, तो आपका ये नीचे वाला सेगमेंट की एरिया आपको मिल जाती है। क्लियर है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो पुट करो वैल्यू। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होती है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? टेल मी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अब हम। थीटा की वैल्यू हमें 90 दी है, 90 डिग्री का एंगल बनाया ना हमारा, 90/360। और वैल्यू आपको पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको 20 दी है, अभी मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर है ना, यस, -1/2 इंटू बेस। बेस आपका कितना है? ट्रायंगल का। ट्रायंगल के लिए ज़रा बेस देख लेते हैं डियर हम, ठीक है ना। अब देखो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ये बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। समझे ना आप? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा आपका? देखो जो आपका ये ट्रायंगल बना है अंदर, इस ट्रायंगल में क्या काम है? ये ट्रायंगल बना है ना आपका, ये ट्रायंगल, तो ये आपकी साइड, ये आपकी बेस हो जाएगी और ये आपकी एक इसमें हाइट हो जाएगी। बराबर है दोनों, बेस और हाइट दोनों बराबर है। देखो ये भी 20 है तो ये भी 20 है, रेडियस ही तो है ना सर्कल का। यस, तो बेस भी 20 दिया आपको, हाइट भी 20 दी है। क्लियर है ना? इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे हम। बेस मल्टीप्लाई हाइट पे आपकी 20। क्लियर है? नाउ वी विल कट इट। हाउ टू कट? यू आर नोइंग 90 4 जा 360 और 4 से आपका 20 भी कट हो जाता है 5 टाइम्स। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, यहाँ क्या बचा आपका? जस्ट टेल मी। 2 से 20 कट हो जाएगा 10 टाइम। अब आपका क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों का मल्टीप्लाई करें। 20 मल्टीप्लाई 5 तो 100 होता है, एंड 100 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा आपका? 2200 डिवाइडेड बाई 7 आपका यहाँ बच जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 माइनस में कितना बच रहा है यहाँ? 10 एंड 20, 10 20 से कितना होता है? 200। क्लियर है ना? इसको बाई 1 करके हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? 7 ही एलसीएम आएगा। तो 7 अगर एलसीएम ले लेंगे, नीचे 7 रखेंगे, तो ये माइनस यहाँ 1400 हमारा हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कितना था? जस्ट टेल मी। 2200 माइनस 1400, आई थिंक 800 विल कम ना। यस, सो इट विल बी 800/7 सेंट। तो ये आपका माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई, आई नहीं आई? ये माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई और ये आपका सर्कल की एरिया आ रही थी 8800, है ना। तो 8800 से अब हम क्या करेंगे?
माइनर सेगमेंट की एरिया को माइनस कर देंगे, तभी तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था यहाँ पे, हमें निकालना था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हमने कितनी निकाली थी अभी, 8800 डिवाइडेड बाई 7 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकाला, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये निकाला हमने 800/7। क्लियर है ना डियर, यस 800/7। इनको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एरिया हो जाएगी मेजर सेगमेंट जो कि आपको निकालनी थी। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। क्लियर है डियर, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट डाउन भी अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। फिगर भी साथ साथ बनाते रहते हैं। क्या कह रहा है, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल बनाना है और सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना है ना, मीन्स अंदर बनाना है ना। तो सर्कल के अंदर हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ये बना लिया, बिल्कुल वेरी गुड। ओके, फिर क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। अब आपको क्या कर रहा है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, सर्कल की एरिया और स्क्वायर की एरिया। इसका मतलब आप इसमें दो चीज़ बनी है, एक तो इसमें सर्कल बना है इस फिगर में और एक स्क्वायर बनाना है। दोनों का हमें अलग अलग एरिया निकालनी है, फिर उनको डिवाइड कर देना है। रेशियो का मतलब डिवाइड कर देना है। क्लियर है, ओके। लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिया है नथिंग हैज़ बीन गिवन है, सो हाउ टू फाइंड आउट। एक चीज़ करते हैं, देखो ये जो मेरा स्क्वायर है, अगर स्क्वायर में ऐसे डायगोनल खींचूँ, ये स्क्वायर का मैंने क्या खींचा, डायगोनल खींच दिया, तो ये डायगोनल ये पूरे सर्कल का डायमीटर का काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ये अगर मैं बीच में पॉइंट ओ मान दूँ तो ये पूरा जो लेंथ है आपका, ये लेंथ है पूरे सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। यानी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर होता है, यहाँ पर है नहीं है। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। कैन राइट इट, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वही सर्कल का डायमीटर है। अब ये जो डायगोनल होता है ना सर्कल का, इस सर्कल का जो डायगोनल होता है ये क्या होता है आपको पता है, डायगोनल ऑफ इसको करते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है पता है। जो ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये जो इसकी साइड है, मान लिया सपोज मैं इसकी साइड को क्या मान रहा हूँ, एस मान लेता हूँ। ये साइड भी एस है, सारी साइड इक्वल होती है ना, एस 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 सारी साइड इक्वल है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड इंटू √2 होता है, साइड मल्टीप्लाई √2, ये स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो इसका मतलब साइड को एस लिखा है तो आप लिख सकते हो एस √2। तो यानी ये पूरी लेंथ आपको, कौन सी पूरी लेंथ बोला मैंने, ये पूरी ब्लैक वाली लेंथ आपको कितनी मिल गई, एस √2। इसका आधा कर देंगे हम तो हमारी सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। गेटिंग ना, सो नाउ आई एम राइटिंग हियर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बताओ कितनी हो जाएगी। जो हमारा डायगोनल, जो डायगोनल है हमारा, ये पूरा डायमीटर है तो इसका आधा कर देंगे हम, है ना। तो कितना था हमारा एस √2, इसको हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, हमें मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगी हमें सर्कल की, क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। क्लियर है, तो हमें सर्कल की अब रेडियस मिल गई, हमें साइड भी पता होगी स्क्वायर की। तो हमें अलग अलग एरिया हमें रेशियो निकालना है ना, किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का और एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है बताओ मुझे, टेल मी, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 22/7 मल्टीप्लाई r, हमने रेडियस अभी इसको निकाला है, से s √2/2, ये है ना आपका, कितना है s √2/2, इसका क्या है स्क्वायर हो जाएगा, पाई r स्क्वायर कर रहा है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है, इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 22/7 मल्टीप्लाई s का स्क्वायर, s स्क्वायर ही हो गया, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, ये देखो ना, इन पर दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा, s का स्क्वायर भी होगा, इसका भी होगा। √2 का स्क्वायर तो 2 होता है और s का स्क्वायर क्या हो जाएगा
एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम कुछ कटिंग वगैरह कर लेते हैं। दिस 2 विल कट दिस 4 2 टाइम्स, और इस 2 से आपका 22 11 टाइम कट हो जाता है। तो आपका क्या बचा 11 एस स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बच गया यहाँ 7 बच गया। तो ये तो हमारी आ गई एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका रेशियो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ निकालना है। देखो ना, एरिया ऑफ सर्कल फिर एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालनी है आपको, इन दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो अब निकाल लेते हैं हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब टेल मी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है? फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, यू आर नोइंग दिस ना? यस, साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी दी है आपको स्क्वायर की? कुछ नहीं दी है, खाली एस दिया है। साइड हमने एस माना है ना, ये भी बताया ना मैंने, साइड हमने एस मानी है। देखो स्क्वायर की एस साइड है ना, तो एस का स्क्वायर हो जाएगा, बस एस स्क्वायर। इसका मतलब हमें अब सर्किल की एरिया भी मिल गई, स्क्वायर की एरिया मिल गई। अब हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है जरा टेल मी? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्किल की एरिया एंड स्क्वायर की एरिया। तो पहले हम सर्किल की एरिया लेंगे। अब ना हम लिखेंगे यहाँ पर रेशियो, रेशियो रेशियो ऑफ area of circle. Okay, let me write it clearly here. Ratio of area of circle and area of square. ठीक है ना। तो रेशियो का मतलब आपको पता है, डिवाइड होता है। सर्कल की एरिया कितनी आई थी हमारी? सर्कल की एरिया में थी 11 एस स्क्वायर बाई 7। इसको लिखेंगे हम ऊपर 11 एस स्क्वायर बाई 7, और फिर से इसके नीचे हम लिखेंगे, किसकी एरिया लिखेंगे इसके नीचे? ओके, लेट मी राइट इट करेक्टली, 11 एस स्क्वायर बाई 7। इसके नीचे हम किसकी एरिया लिखेंगे? स्क्वायर की एरिया। स्क्वायर के एरिया हमारी कितनी आई है? एस स्क्वायर। तो इसके नीचे हम एस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है डियर, ये ऐसे हम इसके एस स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्या होगा पता है आपको? ये जो एस स्क्वायर है ना, ये एस स्क्वायर क्या होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 11 एस स्क्वायर बाई, यहाँ 7 है नीचे, साथ में एस स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो 11 बाई 7। तो अगर रेशियो में लिखा है, रेशियो में कैसे लिखते हैं इसको? 11 रेशियो 7। तो ये आपका आंसर आएगा। यानी इसका सर्किल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो में निकालना था वो आपका 11 रेशियो 7 आ गया। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल with radius 4 centimeter and angle 30 degree. Also find the area of the corresponding major sector. देखो क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एक सर्कल बनाते हैं, उसका इतना पोर्शन हम कट कर लेते हैं, ये पोर्शन, इसी को हम सेक्टर बोलते हैं, जो पोर्शन हमने कट किया है। क्लियर है? तो जो हमने कट किया है ये तो आपका कहलाएगा, ये वाला पोर्शन तो आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर, और जो ऊपर का पोर्शन बच गया आपका, वो पोर्शन कहलाता है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसमें आपको एंगल दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले एक एक करके इसको नोट भी कर लेते हैं। थीटा आपको 30 डिग्री दिया है, और रेडियस भी दिया आपको 4 सेंटीमीटर, आर आपको 4 सेंटीमीटर दिया है ना। तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी। तो इस सेक्टर की एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। एरिया, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। इसको कौन सा सेक्टर बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ठीक है ना। एरिया माइनर सेक्टर को ही हम सेक्टर भी कहेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितनी होती है? टेल मी, क्या होती है? यस, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह 30 रखेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं इसको 30 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। आर आपको कितना दिया है इसमें? आई थिंक 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4। अब आपको पता है हम कटिंग करते हैं, कटिंग कैसे करेंगे? 30 से ये कितनी टाइम कट होता है? जस्ट टेल मी। आई थिंक 12 टाइम होता है ना। यस, 12 टाइम कट होता है। और आपका ये 4 से ये 12 भी कट हो जाता है 3 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आया? आंसर आया आपका केवल ऊपर का 22 4 जा 88 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा आपका? 7 और 3, 7 3 जा 21। तो ये आपका आ गया, किसका एरिया आ गई आपकी? सेक्टर की एरिया आ गई। कौन से सेक्टर की? जो माइनर सेक्टर बनाया आपका ये। अब जो बच गया
वो आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा ये पोर्शन। तो मेजर सेक्टर के एरिया कैसे निकालेंगे हम काम कर लेते हैं हम। पहले पूरे सर्कल की एरिया निकालेंगे, इसमें जो हमने माइनर सेक्टर की एरिया निकाली है इनको माइनस कर देंगे, है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होता है। माइनर सेक्टर की एरिया भी हमें निकाली है 88/21, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम 88/21। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुश कर सकते, ठीक है डियर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दिया था आपको 4 दिया था ना, यस 4 का स्क्वायर कर देंगे मीन्स 4 × 4 माइनस 88/21। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कटिंग तो नहीं होगी, नहीं होगी, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 22 4 जा 88, 88 4 जा कितना होता है, जस्ट टेल मी 88 4 जा कितना होगा, उसको आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 88 4 जा आपका कितना होता है, आई थिंक 352 है ना, यस डिवाइडेड बाय 7 माइनस 88/21। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मेजर सेक्टर की एरिया, ठीक है ना। तो हमें ये निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना था, निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना था, निकाल लिया। क्लियर है, यही आपका क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज questions, and the next question, some more question I will keep sending now, all the short answer type question, then I will move to the long answer type questions. Okay, till then stay tuned, bye bye.